السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناولس۔ تو ناول انا پرست ریٹن بائی نادیہ امین کے ایپیسوڈ نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ خوشی اس کے پورے وجود سے پھولتی نظر آ رہی تھی۔ آج کل ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری رہتی، اس کا رویہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت نرم سا ہو گیا تھا کہ اب ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، وہ اسے بلا کر بولا تھا، "یہ لو روپے، اگر اپنے لیے خود کچھ خریدنا چاہو۔" اس نے اس کے ہاتھوں میں دبے نوٹوں کو ایک نظر دیکھا، پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے لے لیے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت پودوں اور درختوں کے ساتھ بتانے لگی تھی۔ جب بھی فارغ ہوتی، پودوں کی کیاریوں میں گھسی پودوں کی کانٹ چاٹ کر رہی ہوتی۔ چچا الیاس کے دونوں لڑکے، جن کی عمریں 8-10 سال کی تھی، اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ 8 سالہ وکی تو گویا اس سے ملے بنا چین نہ تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ خود کو مکمل مصروف کیے ہوئے تھی۔ اس وقت بھی وہ سب آج کی شاپنگ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ دور بیٹھی وکی کے ساتھ باتیں کرتے کسی بات پر مسکرائے تھے، پھر وکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گدگدانے لگے تھے۔ وہ کھلکھلا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ شاپنگ اور متعلقہ چیزوں کی جانب مبذول نہ ہو سکی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت ماحول سے بے نیاز اس بچے کے ذریعے سکون محسوس کرنا چاہ رہی تھی، یا شاید اس گھر اس شخص سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ اس شادی پر بالکل مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ اکثر نظریں اس نے خود پر محسوس کی تھیں جو بری طرح بھری تھیں، جن میں اس کے لیے طرز رحم تھا، لیکن وہ خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اتنا ہی لاتعلق نظر آ رہا تھا جس طرح کوئی بھی نارمل بندہ اس کی شادی میں شریک اور خود کو لاتعلق محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس شادی سے ناراض نہیں تھی، وہ خود کو یہی جتا رہی تھی۔ بارات کے دن اس کا سوٹ اس نے سنبھال کے رکھا تھا۔ جب وہ تیار ہونے کمرے میں آئے تو سوٹ مل کے ہی نہ دے رہا تھا۔ نوکر کے ذریعے اس نے بلوایا، "کہاں رکھے ہیں کپڑے؟ تمہیں پتہ ہے کتنی دیر ہوئی؟" اس نے کچھ برہمی سے کہا تھا۔ خاموشی سے کپڑے نکال کر اس نے اس کے بیڈ پر رکھ کر جانے لگی۔ وہ اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، "بارات میں تم جاؤ گی، یہ سوال تھا یا بتا رہا تھا؟" اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ کچھ الجھن آمیز انداز میں دیکھنے لگی تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، "کس کی گاڑی میں جاؤ گی؟ میں گھر پر رہوں گی، ادھر کام بھی پڑے ہیں، کسی کا گھر رہنا تو ضروری ہے نا۔ میں رکوں گی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے۔" وہ تفصیل سے بتا کر جانے لگی۔ ایک بار پھر اس نے کہا، "دیکھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دن تک ہم دوسرے کمرے میں رہیں گے، لیکن دراصل مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی عادت ہے، اس لیے ہم ادھر شفٹ ہوں گے۔" وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا خود وہ بھی سمجھ رہی تھی، اس لیے سر ہلاتی کہنے لگی، "سارا گھر آپ کا ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی بتانے کی۔" وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس کے گھر میں کام پڑے تھے جسے کرنے تھے۔ رات کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وروا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ اس وقت سب سے دور وہی کھڑی تھی۔ آج بھی وہ ان میں سے نہیں تھی، ان سے الگ تھی، ان کا حصہ نہیں بنی تھی، ایک ٹوٹا حصہ تھی جو خستہ حالی کا شکار ہو رہی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی کہ دروازہ یکدم سے کھلا تھا۔ سامنے کھڑا وہ ایک پل کے لیے تو بالکل چپ سا رہا، پھر اسے کمرے میں اندر آنے کا راستہ دیکھ کر خود بھی اندر چلا آیا۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی، ٹیبل پر ناشتے کے لیے رکھ کر وہ جانے لگی کہ کچھ یاد آتے ہی مڑ کر اسے کہنے لگی، "ولیمہ کا سوٹ استری کرنا ہے، کہاں ہے وہ؟" بظاہر جملہ سادگی سے کہا گیا تھا، لیکن اس پر اسے کوئی عجیب سا فیل ہوا تھا، کسی گہری سوچ سے نکلتا ہوا بولا، "شکور سے پتہ کرو، اسی کو دیا تھا میں نے۔" اس نے بتایا تو سر بات میں ہلاتی چلی گئی۔ پھر ولیمہ بھی گزر گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کمرہ بدلنا چاہا، لیکن فروا نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ اس کے کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تو وہ اس کی اترنا نہیں چاہتی تھی۔ اس اترن پر وہ سوچتی رہ گئی۔ فروا دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ زنجبیل کی بے پناہ محبت تھی، جس کے حسن کو اس قدر رعنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ ہنی مون منانے ماریشس بھی گئے۔ 15 دن رہ کر آئے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھے، جبکہ ادھر اپنی دنیا میں اس کا وجود خاموشی کی نذر ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر جو گھر کا کام کرتی تھی، اس کی روٹین کچھ اس طرح سے تھی کہ اب ان کاموں میں ایک منٹ ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر گزرنے والا دن ایک ہی ڈگر پر تھا۔ اس میں نسبیل کا کوئی فرق نہ تھا کہ جس سے اس کی روٹین چینج ہوتی۔ ہاں، ایک چیز جو اس کی زندگی کے اوراق میں اضافہ کر گئی تھی وہ فروا کے طنز جملے اور نشتروں کا اضافہ تھا، باقی تمام روٹین ویسی کی ویسی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شام کو باہر نکلتے، گھومتے پھرتے، رات کو دیر سے لوٹتے۔ فروا کے آتے ہی اس کمرے میں آنا ہی بھول گیا تھا، وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں، ایک فائدہ وہ تھا کہ وہ بیڈ پر آرام سے سونے لگی تھی۔ اب اس کی دنیا اس کے کمرے اور خود اس کے اپنے ذات تک محدود ہو گئی تھی۔ شوہر کی من پسند بیویوں کا فروا بہت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر بھر کی چہیتی تھی، اس لیے اکثر اس پر بھی اس کے حکم نامے جاری ہوتے تھے اور زنجبیل کے سامنے ہی ہوتا۔ اس نے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر لیا تھا۔ یا شاید بے نیاز ہونے کا ڈرامہ
कर रहा था। वो अक्सर इससे के साथ छोटी बात पर लड़ जाती, वो इसे बेइज्जत करके रख देती। मेरे घर वाले आ रहे हैं, तुमने सारी तैयारी की या नहीं? वो रात को जल्दी जाएंगे, खाना वक्त पर तैयार होना चाहिए। जरा सी ताख़ीर पर बात में इसने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसे संजबीर ने शांत करते हुए कहा था, यार तुम बिना इस जहाज से उलझ पड़ती हो। इसके एक जुमले ने तो इसे फर्श पर पूरे जोर से पटक दिया था। वो भी यकीनी गाँव से इसे तके जा रही थी। वो कभी उलझती या लड़ती तो ठीक था, लेकिन आज तक तो वो कुछ बोल ही न पाई थी, फिर इसने इतनी गलत बात कह दी थी। इस एक जुमले ने इसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां भी कह दी थी। इस दिन वो दिल खोल कर रोई थी, चिल्ला कर रोई थी। पर वो किचन में अपने लिए काफ़ी बना रही थी, साथ में वो भी करता। जब वो किचन में गई तो इन्हें देखकर एकदम से शर्म से लाल होती पलट कर भागी थी। वो दोनों इस वक्त जिस पोजीशन में थे, इन्हें देखकर कोई भी ऐसा रिएक्ट कर सकता था। देखा इस गवार को बिना हट के चली आई, इसीलिए तो जहर लगती है मुझे। पर वह इसके खिलाफ आग उगल रही थी, जबकि वो तो जैसे वहाँ था ही नहीं। रात को वो देर से घर आया था, इसे सख्त भूख लग रही थी। परवा को इस वक्त उठाना गोया क़यामत उठाना था, इसलिए इस इरादे को मौकूफ़ करके इसने खुद किचन की राह ली। लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने आदम के दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी रात इसे अपने दरवाजे पर देखकर इसे शदीद हैरत हुई थी। खाना दो मुझे। वह पलट कर किचन में जाने लगा। वो वापस किचन में आई। खाना गर्म करके इसने सलाद भी बनाई और टेबल पर लगाकर पानी का जग भी सामने रखा। जब वह जाने लगी तो उसने पुकारा, बैठो। जानी कि सुबह की इस हरकत के बाद वो इसके सामने आने से कतराने लगी थी। शायद वो खिजल से हो गई इसलिए, या शायद मुझे नींद आ रही, इसने धीमे से कहा और जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी और कुर्सी पर बैठते हुए जैसे मज़हब से दिखाई देने लगे। इसकी तरह आपको देखकर खुद गोया हुआ कुछ कहना है। मैं आपसे एक बात करूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो बहुत धीमी अंदाज में बोलती थी, इसके लहजे में बहुत ठहराव था। कहो। वो इसकी बनाई सलाद बड़ी रग़बत से खा रहा था। मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा एडमिशन करवा देंगे? इसके लहजे में बड़ी आस थी, जिसे महसूस करते हुए बोला, कहाँ तक पढ़ा है तुमने? मेरा फाइनल ईयर रह गया था। किसका? मास्टर्स का। कुछ तवक़्क़ुफ़ बाद बोली, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी। मैं चंद सानी हैरान नज़र से तकता रहा, फिर यकदम हैरानी मिटाता बोला, माँ पढ़ने देंगी तुम्हें? जाने किसने ऐसा कहा था, इसे खुद समझ न आई थी। वो बिल्कुल चुप कर गई, फिर इसी खामोशी से उठकर चली गई थी। खाना खा के वो भी अपने कमरे में आया था। बेड पर लेटकर कुछ पल तो इसके एडमिशन के बारे में सोचता रहा। अपनी सारी सोचों पर लानत गई तो सो गया था। वो किचन में खाना बना रही थी, विकी साथ में खड़ा पूछ रहा था, आतंकवादी में बड़ा होकर आपसे शादी करूंगा। मैंने अम्मी को भी बताया। वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अरे तब तक तो मैं बूढ़ी हो गई होंगी, फिर कहो कि इस बूढ़ी से तो शादी कभी न करूँ। नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा। आप मेरे साथ खेलेंगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, लेकिन एक बात, अगर तुम्हारे संजबीर भैया को पता चला ना कि तुम मुझे को हथियार हो, तो वो तुमसे बहुत लड़ेंगे। ये कहते जब इसने अंदर आते संजबीर को देखा तो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। क्या कर रही हो विक्की? ने भी इसके गाल छूते हुए पूछा। फिर इसको मुखातिब करते बोला, परवा कहाँ है? वो मैके गई है। इसने कहा तो वो बोला, चाय बना कर ला। वो चला गया। चाय बनाकर इसने जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने अंदर आने को कहा था। वो चाय रखकर वो बाहर आए तो इसने परवा को आते देखकर, संजबीर के कमरे से निकलते देखकर इसके माथे पर नागवारी की लहर उभर आई थी। फिर तेज तेज कदमों से वो अंदर आ गई। कुछ देर बाद इसके कमरे से तेज तेज बातों की आवाज़ सुनाई दी थी। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलता दिखाई दिया। इस वक्त काफ़ी बरहम दिखाई दे रहा था। सीधा माँ के पास गया। कुछ देर बाद माँ ने फिर वो कभी अपने कमरे में बुलाया था। फिर जाने में क्या बातें हुई कि मामला सेट हो गया था। वो इससे ज़रूरी बात करना भी तर्क कर चुका था। इसकी सास इस औरत को खौफ था, जो कि घर में एक फालतू पुरुष से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती थी। इसने अक्सर इन दोनों के मोहब्बत भरे जुमले सुने थे। कभी कभार तो इन्हें मोहब्बत भरे अंदाज में एक दूसरे के साथ शरारतें करते हुए देखकर तो इससे लग रहा था कि या तो इसमें रोमांस के जरासीम खत्म हो गए थे, या फिर वह बेहिसी की लपेट में इस कदर आ गए थे कि ये सब इसे बेमायने लग रहा था। एक ऐसे दिन इसने खुद को मौजू बनते सुना था। तुम हर वक्त इसे देखते रहते हो, मैंने नोट किया है। तुम्हारी नज़र इस पर से नहीं हटती। वो सख्त लहजे में संजबीर को सुना रही थी। मैं इसे देखता हूँ बिल्कुल इस तरह जिस तरह हर इंसान को देखता हूँ। इस निगाह से नहीं, हरगिज़ नहीं देखता जिस निगाह से तुम्हें देखता हूँ। क्या मतलब? इसने मजाकी अंदाज से कहा था। मतलब मोहब्बत की नज़र। ये नज़र सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो मुस्कुराया था। कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? वो अब भी बेयकीन थी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है? इसने मुलायमत से कहा। तुम्हारी मोहब्बत पर तो है, तुम पर नहीं। परवा ने मुस्कुराकर कहा तो वह भी मुस्कुराया था। अक्सर वैसे मौजू बना देती और इसी पर घंटों बोलती। कभी कभार तो इस कदर चिढ़ता, किसी सख्त अंदाज में टोक कर रह जाता, ये कि तुम हर वक्त अदन अदन की रट लगाए रखती हो, मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ, बहुत ही इस काबिल के इसे अर्जा समझकर 2-4 पल के लिए हंसी मजाक में शामिल किए रखते। किस्मत ने अगर ये ज़िल्लत इसके नसीब में लिख दी थी तो बेशक वो ऐसा करने में हक बजा निपटे।
वो सोचती रहती थी, पर वो अपनी किसी दोस्त के घर गई थी जबकि दोनों नंदे कॉलेज से वापसी के बाद अपने कमरों में सो रही थी। सास चचा इलियास के यहाँ गई थी। घर पर इस वक्त खामोशी का राज था। असर की अजान होते ही इसने नमाज अदा कर किचन में खाने की तैयारी करने लगी थी। आटा गूंद कर इसने बिरयानी के लिए प्याज काटनी शुरू की। गोश्त पहले ही गलाने के लिए रख छोड़ा था। सुनो, एक कप चाय बना दो। परवा कहाँ गई है? वो किचन के अंदर आया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पीने लगा। वो किसी दोस्त के घर गई है। चूल्हे पर चाय का पानी रखकर इसने जवाब दिया। मैं अपने कमरे में हूँ, कहकर वो चला गया। वो चाय बनाकर उसके पास लाई। चाय साइड टेबल पर रखकर वो कुछ देर तक जब भरे अंदाज में खड़ी रही, फिर कुछ हिचकिचाहट से कहने लगी, मुझे कुछ रकम चाहिए। जाने क्यों इस पर इसे इसकी आंखों में नमी दिखाई दी थी। इसकी नमनाक आंखें इस पर बहुत कुछ कह रही थी। इसे यही लगा था। बिना कुछ कहे इसने जेब से रकम निकाली। इस वक्त इसे ये तक नहीं मालूम हो सका था कि किसने कितनी रकम थमाई थी। थैंक्स, इसका ये एक लफ्ज़ इस्मत के मुंह पर तमांचा मारने के लिए काफ़ी था। इस पल इसे अपनी मर्दानी के ऊपर जितनी शर्म आई थी, इसे अपना आप जितना बेगैरत लगा था, इतना शायद कभी अपना आप महसूस ना किया हो। वो मर्द था, वो घटिया मर्द जिसके मुँह पर इसकी बीवी तंज का तीर मारकर चली गई थी। इसकी गैरत पे ये ताज़ियाना बहुत भारी लगा था। इनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे और वो अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। इसके साथ इसे इलाज की गर्ज से कई डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन कोई आसरा न बन सका था। आदर को अपने माँ बाप बहन भाइयों को देखे 3 साल हो चुके थे। इसे लग रहा था कि अगर मजीद 1-2 साल वो इन्हें ना देख सकी तो इनके चेहरों को भूल जाएगी। दिलसोज लम्हात इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। वह तहकीर रवैये इसके वजूद के गिर्द लिबास की तरह लिपट गए थे। किसी जान से ज़्यादा सफ़र का दूर दूर तक इम्कानात और ताहट आमेज़ अंदाज में ज़िंदगी बसर हो रही थी। हर मौसम के लिए जैसा था बेइल्तफ़ाती ने इसे थका दिया था। इस थकावट ने इसके वजूद में वहशत भर दी थी। इन दिनों इसे अपना आप जलील तरीन लग रहा था। एक ऐसा बंदा जो ज़मीन और आसमान पर अकेला खड़ा, एक रहम भरी आवाज़, एक तरह आमेज़ लफ्ज़ का तलबगार हो। इस तशनगी कैबिन इसे निडाल कर दिया था। वो बीमार हो गई थी, लेकिन ये बीमारी भी तन्हाई की तरह इसके साथी बन गई थी। पिछले कुछ दिनों से बुखार मुसलसल हो रहा था। जिस्मानी थकावट, दर्द ने इसे निढाल कर दिया था। सुबह के मरकज़ी उजाले में जब वो सेन में आई तो 4 सौ खामोशी का राज था। लॉन के सब्ज़े पर पाँव रखते ही जाने से क्या हुआ था कि वो लड़खड़ा कर मुँह के बल गिरी थी। इसका सभी चेहरा इस वक्त फिर पिलाहट लिए हुआ था। शेखपुर ने जब इस तरह ज़मीन पर पड़े देखा तो यकदम अंदर की तरफ भागा था। बेख्याली में ज़ंजबील के कमरे दरवाज़े पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा इसी ने खोला था। शेखपुर के बताने पर वो बाहर की तरफ लपका था। वो बेहोश पड़ी थी। इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। इसे गाड़ी में डालकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया था। एडमिट हो गई थी। थोड़ी देर के लिए वो घर आया था ताकि इन सबको खबर कर सके, लेकिन वहाँ तो गोया बात ही कुछ और थी। वापस ऐश के आलम में इसकी जानिब लपकी थी। कहाँ है वो? ज़रा सी बीमारी का बहाना क्या प्रूव किया है? अम्मी कहाँ है? इसकी बात के जवाब में इसने कहा तो चिल्लाती हुई बोली, मैंने कुछ पूछा है? माँ भी चली आई और वो भी लताड़ने लगी थी। वो तो गोया पास कर रह गया था, इन्हें यूँ बोलता छोड़कर, और फिर अस्पताल आया था। वो हनोज सी हालत में थी। इस दौरान कोई 10 बार करवा के कॉल आए थे जिसे उसने रिसीव नहीं किया था, तो वो कम से कम इसके लिए एक कतरी में शरीक नहीं हो सकता था। वो सोच रहा था। राजा ने इस पहर होश में आने लगी थी। वो कुछ कह रही थी। वो उठ कर इसके करीब गया। इसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। अम्मी मुझे ले जाओ यहाँ से। ये लोग बड़े बड़े जालिम हैं। ये मुझे इंसान में जानवर हूँ, इनके लिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सब मुझे ले जाओ, मेले के लिए मुझे ले जाओ। मुझे तुम सब याद आते हो, सब याद आते हो। वो सब मारते हैं मुझे। देखो मेरा सारा जिस्म ज़ख्मी है, मुझे ले जाओ। नीम होशी कैफियत में रोने लगी थी। इसकी बातें सुनकर वो शौक रह गया था। वो मार खाती रही थी, इसे मारा जाता था। वो इतना बेखबर था। अम्मी मैं नहीं रहूँगी यहाँ, ले जाओ मुझे। मुझसे शक रही थी। इस रात जो कुछ वो बोलती रहती, इसने इस मर्द की ज़मीन पर खूब ताज़ियाने लगाए थे। वो खुद फरामोशी के आलम में जो कह रही थी वो इस मर्द के लिए हौलनाक था। 1-2 दिन में बुखार की शिद्दत में कमी आ गई थी। वो मखदूश हालत में नहीं थी। तकिए के सहारे वो बैठी आंखें बंद किए नीम दराज थी। जब वो अंदर आया था, एकदम से आंखें खोल कर उसने एक नज़र इसे देखा, फिर आंखें बंद कर ली। करीब आकर इसने इसके माथे पर हाथ रख दिया था। बुखार कदरे कम था। कुर्सी खींचकर इसके मुकाबले में बैठा संजीदगी से बोला था, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जा रहा हूँ। कुछ दिन वहीं रहो, फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। इसकी बात ने इसे बुत बना दिया था। वो बेयकीन निगाहों से इसे देखने लगी। फिर उठ कर वो दरवाज़ा लॉक करके आया। इसके करीब आकर बोला था, अपनी कमर दिखा। इसकी बात पर वो सकते में आ गई थी। वो यकटक इसे देखे जा रही थी। कहा ना अपनी कमर दिखा। इसे गुमसुम देख कर वो खुद इसकी कमीज़ उठाने लगा तो वो फ़ौरन बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसकी बात को न सुनते वो खुद इसकी कमीज़ उठाकर इसकी कमर पर ज़ख्म के निशान देखने लगा और कहाँ कहाँ मारा है वो इसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए बोला। वो चुप रही तो वो फिर बोला, कहाँ कहाँ और किसने मारा है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? इस पल इसकी आंखों में नमी उमड़ती देखी थी इसने जो अपने अंदर उतारती। वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर जाने क्या हुआ कि 1000 कोशिश के बावजूद अपनी आंखों से रवां होने वाले आंसुओं
पर काबू न रख सकी। वो बेआवाज़ रोती रही। वो इसे रोते हुए देखता रहा। उठा, वो इसे उठाते हुए बाहर ले आता। गाड़ी में बैठकर इसकी माँ की तरफ रवाना हुआ तो इसे माँ के घर के दरवाजे पर उतारते हुए बोला, 2 हफ्ते बाद आऊँगा। घर में तो गोया भूचाल आ गया था, सब इससे खपाते। इसकी माँ ने तो गोया बात करनी छोड़ दी थी। कोई जादू कर दिया है जो इतनी आज़ादी थी। इसे मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मेरी बेटी के दुश्मनों के साथ तुम्हारी इतनी मोहब्बत कि खुद इनके घर इनके पास छोड़ा है। माँ की बातें नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो सुन रहा था। परवा अलग नाराज़ थी। वो भी इससे बातचीत तर्क कर चुकी थी। किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। जब इसने परवा से बात करनी चाहिए, वो बीमार थी तो क्या मरने देता। लोग जानवरों के साथ ऐसे सलूक नहीं करते तो क्या मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करता। प्लस बीवी ने तो परवा को तपा दिया था। ओह, तो बीवी के मर्तबे तक ले आई हूँ। आज पहली बार तुम्हारे मुँह से इसके लिए बीवी सुना है। खूब, अब बड़ी तरफदारी करोगे। यहाँ बाढ़ में गई वो और बाढ़ में गई इसकी बीमारी। मुझे वजाहत मत दो। इसके कतई अंदाज पर इसने भी अपना रवैया चेंज कर लिया था। अगर वो हकीकत सुनने की रवादार ना दी तो वो भी फजूल में अपना दिमाग नहीं कमाना चाहता था। इसकी माँ ने मुकम्मल बोलचाल बंद कर लिया था। इसने 1-2 बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हनोज नाराज़ रहती। जिस दिन इसने अदन को घर वापस लाना था, इस दिन परवा नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चली गई, जबकि इसकी माँ भी परवा के साथ ही गई थी। इनका रवैया ऐसा ही होना था, वो जानता था। वो जब इसे लेने घर गया तो इनके ला करने पर भी अंदर ना गया था। किसी काम का बहाना बनाकर वो इसे सीधा घर ले आया था। फिर इसे घर पर उतार कर वो कहीं चला गया था। रात जब वो घर आया तो घर पर उसे मुकम्मल खामोशी मिली थी। इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने दरवाज़ा को खोला पाया। अंदर आया। कमरे में ज़ीरा बल्ब की रोशनी से कमरा नीम तारीख था। दरवाज़ा लॉक करके वो बेड की तरफ आया था। वो गहरी नींद में सो रही थी। कुछ पल सोच की नज़र हुए थे। दूसरे ही पल वो बेड पर इसके करीब बैठ गया था। खटके की आवाज़ पर वो उठकर बैठ गई और मंदी मंदी आंखों से देखने की कोशिश करने लगी। इसके बराबर में लेटकर वो कुछ पल इसे देखता रहा। फिर कहने लगा, मैंने 2 हफ्तों का वादा किया था, वरना इससे पहले आ जाता। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, इसने मुँह से जवाब दिया था। आज के बाद जिसने तुम पर हाथ उठाया तो मुझे बताओगे, मुझसे छुपाओगे नहीं। इसका हाथ अपने हाथ में लेता बोला, जो जख्म मैंने दिया है इसका मुदावा भी करूँगा। वो खामोशी से सुन रही थी। फिर बोली, वो सब खफा होंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुश्किल पड़े। इसने किसी के खतरे से आगे आ गया था। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा है। तुम वो करो जो मैं कहूँ, बस। वो इसके मामले में हमेशा सख्त रहा था। कसूर मेरे भाई का था, लेकिन खताबात मैं ठहराई गई। इधर वो सब कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और। आप तो ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन घर पर मैं क्या पेश करूँगी, ये सिर्फ मुझे पता है। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। तुमसे मशवरा मैंने कब मांगा? ये मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी हक है कि मैं कुछ बोलूँ अपने लिए। क्या मैं कठपुतली हूँ? पहले आपने कहा था कि मैं सबकी शिकायतें ना करूँ, अब कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ। पहले मुझे देखने के रवादार न थे, अब चंद सानी के लिए खामोश रही। फिर बोली, मैं वो सहने की ताकत नहीं रखती। वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आपके इक़दाम के बाद इनके लिए दुनिया की जलील तरीन मखलूक बन जाऊंगी। वो आपको तो बुरा नहीं समझेंगे, सिर्फ मुझे सुनेंगे। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर यहाँ और ज़िंदगी तंग हो। आप परवा को ही अपनी बीवी समझे, मुझे अपने हकूक़ नहीं चाहिए। इसने आत्मी फैसला किया, जिस पर हम बड़े मज़े से मुस्कुराते बोला था, क्या तुमसे हक लेने के लिए अब मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगी? मुझे चुप लेकिन बेतासर अंदाज में देखती रही। जब मैं ऐसा नहीं चाहती तो आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे तकलीफ़ है, जब मेरे साथ रहोगी तो मेरी मानोगी। वो पुरसुकून सा गोया हुआ, मैं आपको इस कदर जालिम कि जब जी चाहा फेंक दिया, जब जी चाहा इस्तेमाल किया। मैं बेयकीनी से देखती जैसे शौक भतीजा ने तुम जिद करने लगी हो ना, है ना? वो इस्तज़ाई अंदाज में फिर सख्ती से बोला था, अना की बात बीच में लाओगी तो बहुत पछताओगी। मैं क्या हूँ तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। तुम इंतकाम और अपनी ज़िद पर अड़ गई हो, यही बात है ना? वो संजीदा हुआ था, ऐसा नहीं है। वो रुआसी लहजे में कहती तड़प उठी थी। तो फिर क्या है? वो गुस्से से दबे दबे लहजे में दांत चबाता बोला था, मेरी ज़िंदगी जीरन हो जाएगी। मैं आपको क्यों नहीं समझ आ रही? अगर परवा ने आपको यहाँ देख लिया तो मुझे जिंदा दरगोर कर देगी। और रोने लगी थी। फिर आंसू, मैंने मना किया था, मैं तुम्हारे आंसू से पिघलने वाला नहीं। अना की बात है तो फिर ऐसा ही सही। मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। सुबह वो जल्दी उठी थी। वो गहरी नींद में सो रहा था। नहा कर जब वो बाहर निकली तो इसने इसे सैर पर बात करते देखा। वो किसी से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था। वो एक सरसरी निगाह इस पर डालकर जाने लगी कि ऐसे अलाप करके वैसे बोला, इधर आओ। ना चाहते हुए को कुछ कदम चलकर इसकी जानिब आई, ऐसे शौक क्यों मना रही हो? फिर इसके गीले बालों में हुए हाथ देने लगा। वो खामोश खड़ी रही। जब वो मज़ीद बेतकल्लुफ़ी दिखाने लगा तो उसने एक झटके से मुड़ते हुए कहा, मुझे काम है। इसकी हरकत पर मुस्कुराता रहा, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। और फिर मुस्कुराता बोला, गुस्से में काफ़ी अच्छी लगती है। क्यों? मुझ में तो कोई ख़ास बात नहीं, यही कहा था ना आपने इससे पहले। इसे इसकी पुरानी बात याद दिलाते हुए इश्तिहाल अंगेज़ में बोले तो एक हल्का सा कहका लगाते इसे गले लगाते बोले, पहले की नहीं आपकी बात करें, मेरी रात को हसीन मुझे धकेलती चली गई जा रही है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी।
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔